द एक्सप्लोड स्ट्रेटेजी, राइट? एक्सप्लोड स्ट्रेटेजी क्या है? एक्सप्लोड स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू यूज द कंसेप्ट ऑफ बॉलिंगर बैंड. एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर अनलाइक द प्रीवियस एग्जाम्पल, वी प्रीवियस स्ट्रेटेजी में हमने 5 मिनट चार्ट लिया था, अभी हम लेंगे 15 मिनट का चार्ट, और इस 15 मिनट चार्ट को हम लोग यूज करेंगे फॉर कंफर्मेशन our Fibonacci pivots. Okay, so first what are we going to do? We are going to see, based on the concept of Bollinger Band, whether are we getting a widening, यानी is the bands expanding, right? So bands expanding का मतलब क्या है कि ये आपका नॉर्मल बैंड है, राइट? ये आपका नॉर्मल बैंड है, राइट है? ये आपका नॉर्मल बैंड है. ऐसे एक्सपांड होता है बैंड, पहले नैरो होता है फिर एक्सपांड होता है. सो व्हेन द प्राइसेस आर मूविंग, this is called as tagging. How many of you got this? Give me a thumbs up. This is called as the tagging of the band. The prices are tagging. They are tagging the upper band. If they are tagging the upper band, that means they are bullish. Clear? तो ये हम देखेंगे कि now this is part of the identification mechanism. Now confirmation में क्या करना है? confirmation में हमें देखना है कि ये closing के बाद is it going up? Is the price going up above this? That means that the buying is confirmed. If it is down, if this has been the closing and the identification part, confirmation mein price has to go below this, then selling is confirmed. Either buying is confirmed or the selling is confirmed. Now, once that has happened, right, what are we going to do? We are again going to have the concept of pivots. तो जैसे ही एक्सपांड होगा, हम देखेंगे कि क्या वो R1 के नीचे जा रहा है, इसके बाद इट हैज टू अगेन मूव बियॉन्ड R1. सॉरी, द कैंडल क्लोज शुड बी बियॉन्ड R1 so that it is very effective in our implementation. नहीं तो एक्सपांड होगा फिर रुक जाएगा. So we are ensuring that कम से कम ट्रेड मिले, क्योंकि बहुत सारा एक्सपांशन मिलेगा फिर होगा क्या? कंफ्यूजन होगा. Am I right? How many of you agree? बहुत सारे बॉलिंगर बैंड एक्सपांशन हो गए फिर आपको कंफ्यूजन होगा. हमें क्या चाहिए कि बॉलिंगर बैंड एक्सपांशन के साथ is it crossing important threshold levels so that when we participate our activity is useful and profitable. तो यहां पर देखिए, यहां पर एक्सपांशन हो रहा है. जैसे ही R1 क्रॉस हुआ, पहले आप देखेंगे कि क्या वो कंसोलिडेट हो रहा है क्या. जितना कंसोलिडेट होगा उतना मूवमेंट का चांसेस है. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट ऑफ बॉलिंगर बैंड? प्लीज टाइप यस ऑन द चैट. जितना कंसोलिडेट होगा उतना एक्सपांशन होगा तो मूवमेंट आ सकता है. व्हाई? बिकॉज कंसोलिडेशन में द प्राइसेस आर स्लीपिंग, in expansion the prices are awake. So where they are waking up, are they waking up to the upside or they are waking up to the downside? So this is what we are going to be studying. Now having said that, ये जो है, ये पार्ट जो है, यहां पर आपका, यहां तक आपका ट्रेड 1 हो गया और इसके आगे आपका ट्रेड 2 हो गया. क्लियर? This is a buy example. You can see here again another example of HDFC Life. You can see here, in this there was a 6% move. Prices consolidate, then went below S1, confirmation हो गया, tagging हो गया, फिर आपने यहाँ पर ट्रेड किया. यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो है, ओके, योर स्टॉप लॉस will be, there are 2 stop losses available. One is stop loss of the pivot, other is stop loss of the middle band. क्यों? क्योंकि मिडिल बैंड में भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हो. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट कि मिडिल बैंड जैसे ही स्लोप होता जाएगा
आपका स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हैं। क्लियर? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? जैसे ये स्टॉप लॉस ट्रेल है, राइट, ये स्टॉप लॉस ट्रेल जो है, जैसे ही वो बैंड स्लोप होते जाएगा आपका स्टॉप लॉस नीचे 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 आएगा। तो एवरी 15 मिनट्स यू कैन रिवाइज द स्टॉप लॉस इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट मूव। क्लियर? So this is the trailing stop loss mechanism. Now you can see here there was a consolidation and then a buy. Prices went up, correct? And you are able to trail your stop loss. Where did the stop loss get triggered? Stop loss got triggered here, right? Stop loss got triggered here, and then you were out of the trade. So you can see this move from the starting till when it got triggered, it gave you a 6% move. तो अगर आप 1% के लिए टारगेट करेंगे तो भी आपके लिए बहुत हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? राइट, आपको दिख रहा है यहां पे 4%, 5%, 6% मूव आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। आप एक ले लो, दो ले लो, एग्जिट हो जाओ। पहले कैपिटल का बेस बिल्ड करो ताकि आगे चल के जब भी आप ट्रेड करना चाहेंगे आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। शुरुआत में ट्रेडिंग कंसिस्टेंटली एंड प्रॉफिटेबली इज इंपॉर्टेंट। Making 5 lakhs on one day is not possible by everyone, but making 5,000 every day is definitely possible. तो अगर मैं आपको बता दूं कि 5,000 रुपया आप दिन का कैसे कमा सकते हैं, will you be happy? Some of you are happy, very good. Well, others, आपका 5,000 can become 10,000, 10,000 can become 1 lakh. Only thing, you know, the beauty in the market is that आपको scale up करना है। स्केल अप कर सकते हैं, स्केलिंग अप के लिए प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपका प्रोसेस सही हो जाता है आपको वही चीज ज्यादा क्वांटिटी में करना है। बट स्टार्टिंग में ज्यादा क्वांटिटी कर लिए, फिर स्केलिंग अप के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं बचते। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए और उस हिसाब से काम कीजिए। ऑलराइट, सो नाउ अगेन कैन सी हियर prices are now coming down, correct? Prices are now coming down and they are reaching this particular situation. So that's how we are going to participate and that's how we are going to see how to look at the markets. And ये जो आप देख रहे हैं, right, ये जो आप देख रहे हैं at the current juncture, यहाँ से आपको दिख रहा है कि जैसे ही ये मूव आ जाता है, first round of profit booking is here. Trading stop loss, wait for the prices to tag the band, wait for the prices to cross S1 and then take the trade. But after taking the trade, book profits at S3 और ट्रेल द स्टॉप लॉस। दोनों में से एक करना जरूरी है। अगर ये नीचे चले गया तो आप उसको और भी ट्रेल कर सकते हैं। क्लियर?